Branch and Bound of Design Analysis of Algorithm, lecture number 29. Branch and bound is a general technique for improving the searching process by systematically enumerating all candidate solutions and disposing of obviously impossible solutions. Branch and bound usually apply to those problems that have finite solution or in which the solution can be represented as a sequence of options. The first part of the branch and bounding is the branching, and branching requires several choices to be made so that the choice branch out into the solution space. In this method, the solution space is organized as a tree-like structure. So the another definition of branch and bound is a state space search method in which all the children of the node are generated before expanding any of its children. This idea can be strengthened further if we deal with the optimization problem. And an optimization problem seeks to minimize or maximize some objective functions like a tour length, the value of item selected, and the cost of the assignment, and like that, usually subject to some constraint. This we already done this type of problem in exhaustive search of chapter 3, and where we have 3 problems: knapsack, assignment, and TSP through exhaustive search. But the complexity of that algorithm for the smaller instance can be solvable, but for the bigger or greater instance it cannot be possible to solve that problem. Maximization problem. In case of maximization problems, an upper bound tell us the maximized solution possible if we follow the given node. For example, 0-1 knapsack we use greedy approach to find an upper bound. ठीक है, तो एक कैटेगरी हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम की है जिसमें हम अपर बाउंड कैलकुलेट करते हैं ताकि हमें, जैसे कि knapsack है, कि हमें ज़्यादा वेट के साथ ज़्यादा बेनिफिट मिल सके. दूसरा मेथड मिनिमाइजेशन. In case of minimization, a lower bound tell us the minimum possible solution if we follow the given node. For example, in job assignment problem we get a lower bound by assigning least cost job to a worker. तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में हमें लोअर बाउंड कैलकुलेट करके सॉल्यूशन सॉल्व करना होता है, जैसे कि जॉब असाइनमेंट प्रॉब्लम है. These are 3 examples which are we use to solve branch and bound assignment problem, knapsack problem and traveling salesman problem. असाइनमेंट प्रॉब्लम में आपको पता है जॉब्स टू द वर्कर हमें असाइन करनी होती है. knapsack में एक स्टोरेज प्रॉब्लम है, हमें ज़्यादा स्टोरेज अवेल करके ज़्यादा बेनिफिट अवेल करना होता है. और ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सन प्रॉब्लम में हमें एक हैमिल्टोनियन सर्किट जो है वो देखना होता है कि कितने हैमिल्टोनियन सर्किट हमारे ग्राफ में है या नहीं है, ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के फर्दर क्या है? नोट दैट द स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी ऑफ द ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, a feasible solution is a point in the problem search space that satisfy all the problem constraints. For example, a Hamiltonian circuit in a traveling salesman person problem are the subsets of items whose total weight does not exceed the knapsack capacity in a knapsack problem. Whereas an optimal solution is a feasible solution with the best value of the objective function, like the shortest Hamiltonian circuit or the most valuable subset of items that fit into the knapsack. अब हम असाइनमेंट प्रॉब्लम स्टार्ट करने लगे हैं कि इसमें क्या होता है. लेट अस इलस्ट्रेट द ब्रांच एंड बाउंड अप्रोच बाय अप्लाइंग इट ऑन द प्रॉब्लम of assigning n people to n jobs so that the total cost of assignment is as small as possible. तो हमारे पास क्या होगा कि एक तरफ पर्सन गिवन होंगे, एक तरफ हमें जॉब्स गिवन होंगी. हर पर्सन के इक्वलेंट उसकी जॉब का टाइम गिवन होगा और उस टाइम में हमें लेस वैल्यू या लोअर बाउंड तलाश करना होगा, क्योंकि जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है वो एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है. और मिनिमाइजेशन सॉल्व करने के लिए हमें एक लोअर बाउंड, सबसे पहले लोअर बाउंड हमें एक लेना होता है ताकि हम उससे नेक्स्ट जो है वो जॉब जो है उनके हिसाब से साइन करें और लास्ट में भी हमारे पास एक
लोअर बाउंड की वैल्यू ये आती है। और जब तक हम पूरा प्रोसेस प्रोसीड करते रहते हैं, हर स्टेप पे हमें लोअर बाउंड कैलकुलेट करने होते हैं, और जहाँ पे लोअर बाउंड सबसे लेस वैल्यू आएगी वहाँ से हम आगे ट्री को प्रोसीड करेंगे। Assignment problem, we introduced this problem in section 3.4 of this book, where this topic is with exhaustive search. And recall that instead of the assignment problem is specified by n cross matrix C, so that we can state that the problem are as follows: select one atom in each row of the matrix so that no two selected item are in the same column, or their sum is smallest possible। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, एग्जॉस्टिव सर्च में भी हमें ये n का क्रॉस मैट्रिक्स गिवन था, और हम उसमें से फाइंड करते थे कि किस पर्सन को कौन सी जॉब दे दी जाए, तो हमारे पास टोटल जो है वो सम जो है वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल आ सकता है। ये हमारे पास जॉब्स गिवन है और ये पर्सनस गिवन है। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट हर पर्सन की जॉब टाइम गिवन है कि पर्सन ए जो है जॉब 1 9 आवर्स में कर सकता है, जॉब 2 2 आवर्स में कर सकता है, जॉब 3 7 आवर्स में, और जॉब 4 8 आवर्स में। इसी तरह पर्सन बी जो है वो जॉब 1 6 में, जॉब 2 4 में, जॉब 3 3 में, और जॉब 4 7 में। इसी तरह पर्सन सी हमारे पास जॉब 1 5 आवर्स में कह लें, जॉब 2 8 आवर्स में, जॉब 3 1 आवर में, और जॉब 4 8 आवर्स में। और पर्सन डी जो है वो जॉब 1 7 में, और जॉब 2 6 में, जॉब 3 9 में, और जॉब 4 आवर्स में कंप्लीट करेगा। तो यहाँ से अगर हम एक सिंपल लोअर बाउंड निकालें जो कि हमें चाहिए हो सकता है, तो यहाँ पे सबसे मिनिमम 2 है। इस वक्त हम ओवरलैपिंग को नहीं देखेंगे, सिर्फ देखेंगे कि उस पर्सन की मिनिमम जॉब क्या है, क्योंकि हमें एक इनिशियल लोअर बाउंड चाहिए। पर्सन सी की 1 है, इसी तरह पर्सन 4 की सबसे लोएस्ट टाइम की जॉब 4 है। तो इस सब को हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास 10 आएगा, यानी स्टार्टिंग जो लोअर बाउंड जिसको हम स्टेट 1 के लिए या 0 के लिए यूज़ करेंगे उसकी वैल्यू हमारे पास 10 है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्री कैसे प्रोसीड होगा, इसको कहते हैं स्टेट स्पेस ट्री। तो इसको हम ब्रांच एंड बाउंड में कैसे प्रोसीड करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि सारे पर्सन्स के स्मॉलेस्ट आप ले लेंगे, तो उससे हमारे पास एक लोअर बाउंड बनता है 10, और वो हमारे पास स्टार्टिंग जो है वो इंडेक्स बनेगा। जब हम लोअर बाउंड 2 + 3 + 1 + 4 10 कर लेंगे, अब उसके बाद से हमारा सोल्यूशन प्रॉपर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन किस तरह से स्टार्ट होगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि पर्सन ए को जो है अगर जॉब दी जाए तो उसके पास सारी की सारी चॉइसेस हैं, यानी उसके पास जॉब 1 की चॉइस भी है, जॉब 2 की चॉइस भी है, जॉब 3 की चॉइस भी है, जॉब 4 की चॉइस भी। इस तरह से हमने इसलिए पर्सन 1 को हम एक फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब, थर्ड जॉब और 4th जॉब असाइन कर सकते हैं, इसलिए हमने ट्री से 4 लीव्स जो हैं वो ड्रॉ की हैं। ठीक है, अब अगर हम पर्सन ए को जॉब 1 दें तो 9 बनता है। तो 9 हमने ये देखें यहाँ पे मेंशन कर दिए, लोअर बाउंड अब दोबारा से कैलकुलेट करें। बाकी हमारे ये कॉलम फिक्स होने के बाद ये वाला एरिया जो है ये अवेलेबल है, इसमें हम बाकियों के ओवरलैप भी होते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी हम सिर्फ पर्सन ए के लिए जॉब्स असाइन कर रहे हैं। तो 3 1 और 4 वो लेयर्स हमने यहाँ डाल दी, तो ये 17 आ गया। ठीक है, अभी हम ये नहीं कह सकते कि पर्सन 1 को हम यही जॉब दे सकते हैं, क्योंकि हमें बाकी 2 3 और 4 जॉब्स के लिए भी पर्सन ए की जो वर्किंग आवर्स हैं वो चेक करने हैं। अच्छा, अब सेकंड के लिए हम देख रहे हैं कि अगर हम पर्सन ए को 2 जॉब दें तो उसका वेट है 2, तो हमने यहाँ पे 2 प्लस बाकियों के लिए यही कॉलम है, इनकी ओवरलैपिंग होगी तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये वाला जो है ये हमारा जो है वो फिक्स हो गया। बाकी ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको बेहतर कर देती हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी का इशू ना हो। देखें, अब हम जो है इसमें देख रहे हैं कि पर्सन 2 जो है उसको हमने 2 जॉब दे दिए। अगर आप 2 जॉब दे देंगे तो ये एरिया जो है अनअवेलेबल हो जाएगा और बाकी 3 कॉलम बाकियों के लिए होंगे। तो इसमें हमारे पास 3 1 4 उनके इसी 3 4 में थे अवेलेबल, तो वो हमने वैसे ही लिख लिए, तो हमारे पास वेट आ गया 10। इसी तरह अगर पर्सन ए को हम 3 जॉब्स दे दें तो 3 जॉब देंगे तो इसका जो होगा लोअर बाउंड, इसकी पहली जॉब 7 है, हमने यहाँ पुट कर दिए 7 +
जब इसके लिए हमने ये वाला जो जॉब 3 है इसको फिक्स कर दिया तो ये सिचुएशन होगी कि बाकी सब के लिए तो जॉब बी और सी के लिए हमने इसमें से निकाला था, अब वो इसको नहीं मिल सकता। बी और सी के लिए हमें कोई अल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास 4 है जॉब बी के लिए और सी के लिए 5 है और फिर 4 है। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे तो इसकी लोअर बाउंड की कॉस्ट बनेगी 20। अगेन वो बहुत ज़्यादा है। फिर हम चले जाएंगे जॉब अगर ए को हम 4 असाइन करें तो लोअर बाउंड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 वैल्यू है इस वक्त, ठीक है। तो इस सूरत में अगर हमारा ये वाला जो 4 कॉलम है वो एक तरह से फिक्स हो जाएगा और ये जॉब अब किसी और को असाइन नहीं हो सकती। तो 8 इसमें से मिल गया, तो बाकी सब के लिए 3 1 इन कॉलम में से अवेलेबल था और डी के लिए इसके अलावा 6 अवेलेबल था, तो ये 18 हो गए। तो हमारे पास 4 लोअर बाउंड आ गए। अब इसमें से सबसे कम कौन सा है, 10 वाला। इसमें कि 10 वाला आगे प्रोसीड करेगा और अब हम नेक्स्ट चॉइस जो है वो बी के लिए करेंगे। ए के लिए हमारी चॉइस जो है वो फिक्स हो चुकी है कि इसको जॉब 2 जो है असाइन कर दीजिए, क्योंकि जॉब 2 जो है वो 2 है और पर्सन ए की सबसे कम टाइमिंग होने वाली जॉब है, इसलिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे अब ये फिक्स हो गया। अब नेक्स्ट में हमें बी के लिए, फिर सी के लिए और फिर डी के लिए हमने इसी तरह स्पेस ट्री को ग्रो कर करके बनाते चले जाना है, ठीक है। हम यहाँ तक तो हम लोग स्टेज 1 तक तो कर चुके हैं। अब हमने देखना है कि आगे हमने किसको प्रोसीड करना है। अब हमारे पास बी है और बी के पास जो ये वाला कॉलम है 2 ये नहीं होगा, ठीक है। तो पर्सन बी के पास 3 जॉब्स कैन बी अवेलेबल, जॉब 1, जॉब 3 एंड जॉब 4। तो यानी कि सबसे लोएस्ट हमारे पास आया था 10। तो यहाँ से हमारे पास 3 ट्री के जो है वो लीव्स ग्रो करेंगे और बी के लिए हम चेक करेंगे कि वो 6 दें या 3 दें या 7 दें, ठीक है। तो यहाँ से आगे हम अब बी के लिए प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हम जॉब 2 जो है वो तो हम असाइन कर चुके हैं ए के लिए और इस तरह से हमारे पास ये कॉलम और ये रो जो है ये अवेलेबल नहीं है। अब हमारे पास बी के पास क्या है, 1 जॉब असाइन की जा सकती है। ये कॉलम है बी के लिए, ये कॉलम है और ये कॉलम है। तीनों कॉलम को हम जब करेंगे तो जॉब ए तो हमारे पास लोअर बाउंड में फिक्स रहेगी जो कि क्या थे, 2 थी। अब इसमें अगर इसको फर्स्ट दे दी जाए तो इसकी वैल्यू है 6। इसी तरह से अगले दो के लिए 1 और 4, 1 प्लस 4, तो ये वैल्यू बनती है 4 एंड 1 5 और 6 11 12 13, तो ये 13 बनती है। लेकिन अभी भी हम इसे फिक्स नहीं कर सकते, हमें पता नहीं है कि अगली दो वैल्यूज़ इससे स्मॉलर्स भी आ सकती हैं। तो बी को अगर हम थर्ड जॉब देते हैं, यानी बी को अगर हम थर्ड जॉब देते हैं तो उसकी कॉस्ट है 3, यानी लोअर बाउंड दोबारा आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लोअर बाउंड की पहले वाली की तो वैल्यू फिक्स है 2 प्लस और 3, अगर 3 जॉब दे दी जाए। अब सी के पास और डी के पास, उनके पास जो है वो 1 और 4 जॉब रह जाती हैं। सी को अगर हम दें तो सब इसकी स्मॉलेस्ट 5 बनती है और डी के पास 4 बनती है, ठीक है। तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 14 बनेगा, ठीक है। 14 जो है अभी भी हमें कंफर्म नहीं है, ये बेसिकली 13 से ग्रेटर है, लेकिन हमें एक और चॉइस देखनी है बी के लिए कि अगर हम इसको 4 दे दें तो फिर क्या होगा, ठीक है। अगर हम बी को 4 जॉब दे दें तो हमारे पास लोअर बाउंड जो दोबारा कैलकुलेट होगा वो होगा 2 तो हमारे पास ए का था और बी के लिए 7, ठीक है। तो ये हमारे पास फिक्स हो गया। बीच में सी के लिए हमारे पास 1 और 7, 1 प्लस 7, तो ये 17 आ जाएगा जो कि हम इसमें मेंशन कर देंगे। अब इन तीनों में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला, यानी ए के लिए हमने सेकंड जॉब फिक्स की थी और बी के लिए हम जॉब 1 कर रहे हैं, यानी बी के लिए ये वाला कॉलम फिक्स कर रहे हैं। अब हम हमारे पास आगे सोल्यूशन को लेके जाएंगे। अब हमारे पास ए और बी की तो शोर हो चुकी है, अब हमने देखना है कि सी के लिए क्या ऑप्शन बनेगा। यहाँ पे हम लोग देख लें कि हमने ये वाले दोनों प्रोसीड नहीं किए, सबसे स्मॉलेस्ट ये वाला था, इसको प्रोसीड किया। अब सी के पास हमारे पास से 2 चॉइसेस हैं, क्योंकि 2
और 1, ये दोनों तो ए और बी को असाइन हो चुके हैं, यानी इनके लोअर बाउंड में जो है 2 + 6 जो है वो तो हम मेंशन कर चुके हैं। इसमें आगे सी और डी की वैल्यूज़ जो हैं हमने डालनी हैं, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे ए के लिए 2 और बी के लिए 6 जो है वो हमारी फिक्स हो चुकी है। ठीक है, अब 3 के लिए हमारे पास ऑप्शन से 2 चॉइसेस बनती हैं, सी या डी। ठीक है, अगर हम सी को जॉब 3 देंगे ऑटोमेटिकली जॉब 4 को असाइन हो जाएगी। इसी तरह से अगर सी को जॉब 4 देंगे तो ऑटोमेटिकली डी को 9 असाइन हो जाएगा। तो हमने अगर अब सी को 3 दिया तो डी को ऑटोमेटिकली 3 मिल जाएगा। तो इस केस में हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, सी को अगर हमने 3 दिया उसकी कॉस्ट क्या है 1 और प्लस और उसको देंगे तो 8। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, अगर हम सी को हम देते हैं तो 1 और डी को देते हैं तो सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। तो ये हमारे पास क्या होगा 6 और 10 11 12 13। ठीक है, तो ये आ जाएगा सोल्यूशन। अच्छा, अगर हम सी को ये वाला देते हैं ऑप्शन डी वाला, तो फिर क्या होगा, लोअर बाउंड में जो हमारे पास पहली 2 वैल्यूज़ थी 2 + 6 जो कि किसकी थी, आपके पिछले वाले लोअर बाउंड की वैल्यू जो कि ए और बी को असाइन थी वो तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इस लोअर बाउंड में पास जो 9th लोकेशन है, अगर हम सी को 4 दे दें, सी को अगर हम 4 जॉब दे दें तो इसकी कॉस्ट है 8, तो ऑटोमेटिकली डी को 9 असाइन हो जाएगी और जो कि 25 बनती है। ठीक है, तो इस लिहाज से हमारा जो फिजिबल सोल्यूशन है वो ये बनता है, जिसमें हमारे पास ए को हमने जॉब 2 दी, ठीक है, बी को हमने जॉब 1 दी, ठीक है, और सी को हमने जॉब 3 दी और डी को हमने जॉब 4 दी। ठीक है, तो ये हमारा ब्रांच एंड बाउंड का मेथड है कि असाइनमेंट को कैसे सॉल्व कर सकते हैं थ्रू ब्रांच एंड बाउंड। तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, और अब जो 7th असाइनमेंट होगी उसको आप इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकें।